discussing on a very, very important topic. And this topic is managing one's emotions. So how did I learn these things? Many times people are asking, where did you take this training? So well, I have spent the last 22 years understanding the Eastern philosophy, and along with that, the Western sciences. I have taken training from international trainers and spent a huge amount of money to understand the depths of the human life, right? You could be in the best of the 7-star hotels, and you could be in the best of the star-decked cruises, but if your emotions are not balanced, whether you are in Mauritius or whether in New York or whether you're in Las Vegas, you will be having a tough time. How many of you agree with me? Please type Y in the chat box. If you agree with me, please type Y in the chat box. Thank you, Sarvesh. I'm liking the energy in the room. So let us go into a very, very important topic, because every one of us are undergoing a range of emotions from morning to night, a range of feelings, a range of emotions, a range of upset, hurts, angers, and so many things, good feeling, bad feeling. And let us see this in great details today. Thank you so much. So I'll be not going again into the introduction, as he has covered it very wonderfully. Let me directly jump into the topic. I've taken these topics for more than 5 lakh students all over India in various prestigious medical and engineering colleges, including IITs, NITs, top medical institutes like Armed Force Medical College, GS8 Medical College, Grants Medical College, and in top multinational companies. This is a class I gave in RMCH, and this is in 5,000 students in an auditorium at Birla Institute of Technology, BIT. And this was me. जब मेरी इमोशंस की बैंड बजी पड़ी थी, जब मेरी जिंदगी की वॉट लगी पड़ी थी, हाँ, जब मेरा वेट 140 किलो का हो गया और मैं हूं बैठ के खाता हुआ. Can you see me? And right now you're able to see me. This is a photograph I had taken during the Corona times only. Okay, just the Corona had started that time, and I reduced my weight from 140 odd kgs to right now 78 on the spot, right? And I have maintained my weight for 2 years. And दोस्तों, ये जो तकलीफ होती है ना, look at my face, look at the face then and look at the face now. The energy is the main thing in the body. जैसे मैं आप लोग के इतने लोगों की वीडियो को देख रहा हूं, because I'm also a Vedic face reader. If you go to my YouTube channel, I'm also a Vedic face reader. And as I see all of your faces, I can make out that all of you are lighting up with different voltages and different energies, because it's all about the energy game. और मैंने ये एनर्जी साइंस को, मेरा हालत इतना पस्त हो गया था, बिकॉज मेडिकल साइंसेस में सुबह से शाम तक मेरे को पढ़ाई करना होता था, इवनिंग में हॉस्पिटल ड्यूटीज होता था, एंड उसके साथ साथ आई वाज इनटू दिस ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स गोइंग फ्रॉम दिस कॉलेज टू दैट कॉलेज, बिकॉज देयर वाज नो जूम. आई वुड ट्रैवल टू NITs, IITs, और मेरी हेल्थ की बैंड बजी थी बहुत दोस्तों. और इस तरीके से मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया. आज की दुनिया में there is more of information and information, and there is so much information available that there is no transformation. This program here is not an information download system to the brain, but it is a process of heart transformation by accessing the invisible energies of the universe. तो दोस्तों, हर आदमी की जिंदगी 4 पहिए पे चलती है. As a car runs on 4 wheels, our life also runs on 4 wheels. And these 4 wheels are PQ, EQ, IQ, and SQ. PQ is your physical quotient. How is your health? रोटी, कपड़ा, मकान, basics. हाँ? जान है, जहान है. अगर हेल्थ ही ठीक नहीं है, घंटा पैसे कमा के कुछ होने वाला है. हाँ? घंटा रिलेशनशिप रख के कुछ होने वाला है, बस घंटा बजने वाला है. So PQ, physical quotient, your health is so important. I had become a professor. I had all the accolades. I had won, so many prizes. I had done international courses. लेकिन बिस्तर से उठना बैठना 140 किलो का ये पहाड़ को लेके चलने में मेरी नानी याद आ गई थी. And then I decided enough is enough, boss. अब मेरे को पढ़ाई करने का है. I did all the international courses. I understood about minds, feelings, emotion. इतने सारे. Look at my library. There are 5,000 books I'm showing. This library, हाँ, ये बुक्स को मैंने रगड़ा है, पढ़ा है, घोला है, पिया है, और तब इस पोजीशन में बैठा हूं कि आप लोग से बातें कर रहा हूं. पीक्यू के बाद दूसरा वाला व्हील आता है दोस्तों, EQ, इमोशनल कोशेंट, फैमिली, राइट? कितना भी बोल लो, फेसबुक में चाहे 5,000 दोस्त हो, जब आईसीयू में एडमिट होते हो ना, कोरोना अगर किसी को हो गया, वेंटिलेटर में बाहर तुम्हारी मम्मी बैठी रहती है दोस्तों. हाँ, योर मदर सिट्स देयर एंड क्राइज फॉर यू. ओके,
देयर विल बी लॉट ऑफ, हाँ आजकल तो किसी का डेथ हो जाता है तो सिर्फ 3 लेटर लिख देते हैं, रिप रिप रिप, हाँ रेस्ट इन पीस। पूरा लिखने में भी लोगों को टाइम लगता है, इतना टाइम कौन लगाएगा, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। क्या आत्मा का इतना ही वैल्यू रह गया कि एक रिप लिख दिए? सो पीक्यू के बाद आता है ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, और इमोशनल कोशेंट के बाद आता है आईक्यू, व्हाट इज योर नॉलेज कोशेंट, केक्यू, व्हाट इज योर रिलेशनशिप कोशेंट, आरक्यू। और ये सब होते हुए भी अगर आपकी एसक्यू नहीं है ना बॉस, जिंदगी खोखला है। स्पिरिचुअल कोशेंट, व्हाट इज योर हैप्पीनेस लेवल्स, आर यू रेजोनेटिंग विद स्ट्रॉन्ग एनर्जी? क्या लोग आपको देख के दुखी आत्मा होके मर जाते, या आपकी बातें सुन के लोग एक्साइट हो जाते हैं? क्या आपके आने से आप पॉजिटिव एनर्जी इस दुनिया में ट्रांसफर कर रहे हैं, या आप धरती का बोझ बने हुए हैं? स्टीफन कोवी इन हिज बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल सेज दैट जब आपकी अर्थी उठेगी ना, और मान लीजिए आपके कान में जान आ गया, तो आप क्या सुनना पसंद करेंगे? धरती का बोझ कम हो गया या कुछ और हो गया, राइट? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग। दोस्तों, अगर आज के सेशन से आप एक वर्ड को समझना चाहते हैं, वो वर्ड है नीड्स, NEEDS, नीड्स। अपनी जरूरत को समझिए। कई बार हम अपनी जरूरतों को नहीं समझ पाते हैं और इसीलिए इस दुनिया में इमोशन के पहाड़ में दुखी हो जाते हैं। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स if you are attentive, this seminar will change your life, I give a guarantee, right? लेकिन कहते हैं ना कि पहले ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, पहले काम करके दिखाओ, right? So needs are very important. अपनी जरूरत को समझना, बायोमैकेनिक्स ऑफ नीड्स, कनेक्ट टू योर नीड्स। बार बार अपनी जरूरत को समझिए। और नीड्स और वांट में अंतर होता है। मतलब भूख लगी है तो लगी है, दुनिया को मत बोलो कि भूख नहीं लगी है, भूख लगी है तो लगी है, तकलीफ हो रहा है तो हो रहा है, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज इट, अवॉइड डिनाइंग योर नीड्स। हाथी के दिखाने वाले दांत और खाने वाले दांत जब अलग हो जाते हैं, यानी हमारी बाहर की दुनिया कुछ और अंदर की दुनिया कुछ और, when life has a dynamic disequilibrium where you are showing to the world something else and you are something else, then life totally changes for you. Man is a strange animal. Give him cold, he wants it hot. Give him hot, he wants it cold. When you give him cold, he wants it hot. Always wanting what is not, right? और अपने नीड्स को कभी डिनाई मत कीजिए। डिनाई मतलब आप स्प्रिंग को दबा रहे हैं, एक दिन वोल्केनो फटेगा। प्रेशर कुकर का सीटी को अगर आपने बंद कर दिया तो प्रेशर कुकर फटेगा। एक्सप्रेस योर नीड्स, सच्चाई में रहिए। हाँ, जितना भी हम जब बाहर कुछ और एक्टिंग करते हैं और अंदर कुछ और होता है, तो फाइनली लोग ऐसे हैं कि सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, इसीलिए उसके साथ होता कुछ और है। कई बार तो सुसाइड हो जाता है। नीड्स डायनामिक है। जब हम बच्चे थे तब हम कागज की कश्ती नौके बहाते थे बरसात के दिनों में। एक छोटा बच्चा देखता है प्लेन और बोलता है मैं पापा की तरह पायलट कब बनूंगा, और पायलट जो चला रहा है बोलता है कि मैं धरती पे कब उतरूंगा, हाँ, और घर कब जाऊंगा। जब ब्लैक कैट कमांडोज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेके जाते हैं तो चिनिया बादाम वाला सोचता है अरे यार क्या जिंदगी है, मेरी तो जिंदगी बैंड बजी पड़ी है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सोचता है ये ब्लैक कैट कमांडो से मैं पागल हो रहा हूँ, जरा ढोकला फेफड़ा और गुजरात के में बैठ के थोड़ा सा हम शांति से बैठ के रोड के बगल में कुछ खा ले। So always we are in the sphere when we are focusing on things which we don't have. और दोस्तों, लास्ट 2 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को एक बहुत बड़ा चीज सिखा रहा हूं आज, ओके, जो मैं एसेंस इतने सारे बुक से सीखा हूं, आप लोग को सिखा रहा हूं। Whenever you feel negative, that means आपकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, और whenever you feel positive, उसका मतलब आपकी जरूरत पूरी हो रही है। थॉट्स जनरली झूठ बोलते हैं, लेकिन फीलिंग्स कभी झूठ नहीं बोलते। Mind my words, if you feel something, it's coming from the heart and it is true, but your thoughts may be wavering and thoughts come and thoughts go. Let us go more into the details. How many of you are understanding? Please type you in the chat box. You for understanding. अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो you लिखिए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा डीप है और टॉपिक थोड़ा सा बहुत ही डेलिकेट है, राइट? सो अगर आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल में रखना है तो 2 ही टाइप का कम्युनिकेशन होता है। एक होता है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन और एक होता है वायलेंट कम्युनिकेशन। अमेजिंग मानसी, मोहम्मद, सुकृत, सत्यम, आई एम लविंग द काइंड ऑफ वे यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। जनरली लोग 40 साल जिंदगी की गुजर जाते हैं, इतने ठोकरे खाते हैं, घाट घाट का पानी पी के, लात जूता खा के जब ये समझ में आता है। लेकिन यू ऑल आर सो फॉर्चुनेट। हाँ, मैंने तो बहुत लात जूते खा के सीखे, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू,
हाँ, जब एकदम मतलब हालत खराब हो गई थी, डूबते को तिनके का सहारा, then I understood these things, right? So my dear friends, when you want to communicate, remember this golden formula OFNR. OFNR, OFNR, OFNR. O for observation, F for feeling, N for needs, and R for request. जब आप केयरफुली ऑब्जर्व नहीं करते हैं चीजों को, तो आप दूसरों को जज करते हैं। तू ऐसा ही है, तू फालतू है, तू लेजी है, तू तो हमेशा गुस्से वाला है, तू तो कभी पढ़ाई करता ही नहीं है, तूने आज तक जिंदगी में किया ही क्या है, यूजलेस पर्सन। So rather than observing, we are judging the person. In non-violent communication, you feel, and violence means you are at the level of the thoughts. वो मेरे बारे में एक बार I remember when I was small, I had watched a movie, और उस मूवी में एक डायलॉग था, हीरो बोलता है विलन को, मैं ये सोच रहा हूं, विलन बोलता है, मैं ये सोच रहा हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, और फिर हीरो बोलता है, मैं ये सोच रहा हूं कि आप क्या सोच रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट? सो रादर देन बीइंग ऑन द थॉट प्लेटफॉर्म, ये जो हेलीकॉप्टर हमारा घूमता रहता है ना, गड़ 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 गड़, इसको लैंडिंग करा दीजिए, इसको लैंडिंग करा दीजिए। ये थॉट्स के प्लेटफॉर्म से इसको लैंडिंग कराइए फीलिंग्स के प्लेटफॉर्म में। Bring it to the feelings platform, and you are able to understand your feelings. Some window is open, just close it up. You are able to understand your feelings only when you're connected with yourself. Only when you are enough self-aware, then you are able to be connected with yourself and you can understand about the feelings. When you understand the feelings, when the feelings are good, that means आपकी जरूरत पूरी हुई है. Behind golden statement, ध्यान से सुनिएगा. Behind every feeling there is a need. When the need is fulfilled, you get a good feeling. When the need is not fulfilled, you get a negative feeling. और जब आप अपने नीड को समझ जाते हैं, तब आप दूसरे आदमी से रिक्वेस्ट करते हैं. जब कोई आपको कुछ बुरा बोल के गया, तू पागल है, तू इडियट है, तो जो वायलेंस हो गया बोलेगा तू क्या है, तू भी तो ऐसा ही है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये करेंगे, और हम थॉट्स में चले जाते हैं और दूसरे को ब्लेम करते हैं और फिर डिमांड करते हैं निकल तू यहां से. लेकिन जब हम इमोशंस में रहेंगे, बाहर का कुछ लाइट्स ऑन कर दीजिए सो दैट यू नो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. एक्चुअली ये रूम का लाइटिंग इतना ज्यादा है दैट यू नो because of rain these small insects are coming in. Sorry for that. Okay, so you have to understand one very important thing, that observe carefully, look at your feeling in the heart, understand what is the underlying need and then make a request. लेकिन जब हम लोग अपने आप से कनेक्टेड नहीं रहते हैं तो हम लोग दूसरों को जज करते हैं. जब हम लोग दूसरों को जज करते हैं तो थॉट के प्लेटफॉर्म में हम लोग घूमते हैं, एंड फ्रॉम दैट कम्स ब्लेम एंड देन देयर इज डिमांड. सबको समझ में आ रहा है? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज टाइप वाई इन द चैट बॉक्स. प्लीज टाइप वाई इन द चैट बॉक्स अगर आप लोग को ये वाला स्लाइड समझ में आया. वाओ, हरिवाम, सुकृत, आचार्य, सुयोग, अंबाद्रे, lovely, lovely, lovely. I am happy because this is a very deep topic. Okay. जब वायलेंस होता है तो जजमेंट होता है, एक्सपेक्टेशन, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन, थॉट्स. बट इन नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन यू ओनली ऑब्जर्व. Observe without evaluation. Only observe, don't evaluate. You focus on the feeling within and not on the thoughts which are coming and going in the monkey mind. Rather than criticizing, complaining, blaming oneself and blaming others, we focus on our needs and then we made a request instead of demanding. So what are the feelings? इसमें मैं थोड़ा fast जाऊंगा because a lot of things have to be covered and we have a limited time. You can feel sad, और sad के जगह में other words could be discouraged, disappointed, depressed. You could be uneasy, uncomfortable, hurt, embarrassed. You could be nervous, anxious, worried, skeptical. You could be scared, fearful. And these are all different feelings. And there is a slight difference between feelings and emotions. And today's topic is how to manage your emotions. You could be confused. You could be angry. You could be frustrated. You could be uninterested. You could be happy. You could be enthusiastic, you could be confident, or you could be comfortable. You could be peaceful, you could be rested. You could be loving, and you can be grateful. You could be adventurous, and you could be interested. तो इतने सारे फीलिंग्स को हम लोग को समझने के लिए बहुत सूक्ष्मता की जरूरत है, बहुत सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है.
First we need to become conscious, then only we can become God conscious. आत्मा को मानने में, जानने में, समझने में और महसूस करने में बहुत अंतर है। और फीलिंग के नीचे छिपा हुआ होता है नीड। नॉर्मली लोग तो थॉट्स में ही घूमते रहते हैं, सर मुझे कुछ नहीं फील हो रहा है। अरे भाई सांस ले लो, आंखें बंद करो, टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ा अलग रूम में आ जाओ, शांति से बैठो 2 मिनट, लड़ाई झगड़ा मत करो, ठंडा पानी पियो, तब आपको समझ में आएगा कि अंदर में क्या फील हो रहा है। नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, कुत्ते की तरह हम लोग चिल्लाते हैं, वो ऐसा बोलता है, हम ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा बोलता है, हम ऐसा बोलते हैं, एंड देयर इज नो एंड टू दिस इमोशनल ड्रामा। How many of you have faced this drama, by the way? Please type D in the chat box. ऐसे ड्रामा आपके घर में भी होता है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ भी होता है ऐसा ड्रामा। थैंक यू सर्वेश, आई एम लाइकिंग योर ऑनेस्टी। सच गट्स चाहिए भाई अपना चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। सबके जिंदगी में ड्रामा चलता ही है। फेसबुक का फोटो और आधार कार्ड के फोटो में कुछ तो अंतर होता ही है ना, और वो अंतर है ड्रामा का। ड्रामा फेसबुक में हम लोग ड्रामा बहुत अच्छा करते हैं और आधार कार्ड में असली वाला फोटो आता है, राइट? वेल, नीड्स, हर फीलिंग के नीचे एक नीड छिपा हुआ है। नीड्स हर व्यक्ति का नीड्स है, ओके? नीड्स ऑफ बिलोंगिंग, नीड्स ऑफ कनेक्शन, नीड ऑफ सेलिब्रेशन, नीड ऑफ चॉइस, नीड ऑफ क्लैरिटी, कंपिटेंस, कंपैशन, ग्रोथ, इंटीग्रिटी। हर आत्मा का नीड है टू लव, receive and give love, mutuality, peace. These are the things which we need to take care. हर आदमी को respect चाहिए, reassurance चाहिए, service चाहिए, spirituality चाहिए, self care चाहिए, well-being चाहिए, right? We have to understand that we have to make friends with the mind. कितने लोगों ने देखा है कि गांव में आप अगर गाड़ी में जा रहे हैं और कोई भैंसा आपके सामने आ जाता है तो कितना मुश्किल होता है। आप जितना हॉर्न बजाएंगे, पै 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 पै, वो भैंसा बोलेगा अम्बा अम्बा, हिलेगा नहीं वो। तो भैंसे को कैसे हिलाने का? भैंसे को हिलाने के लिए 2 तरीके हैं। रस्सी पकड़ के अगर उसको खींचेंगे, जितना आप उसको खींचेंगे वो भी बोलेगा। नहीं हिला सकते भैंसे को, उसके बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो भैंसे को क्या करने, फिर भैंसा धीरे धीरे साइड में हो जाएगा। माइंड, अभी आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। ऑल ऑफ यू प्लीज डोंट थिंक अबाउट द रेड मंकी। और अगर आप लोगों ने रेड मंकी के बारे में सोचा, प्लीज टाइप RM इन द चैट बॉक्स। RM फॉर रेड मंकी। मैंने आप लोग को बोला रेड मंकी के बारे में मत सोचो, थैंक यू हरिवंश। और वही माइंड में आया होगा। माइंड वही करता है जो हम नहीं करने बोलते हैं और वो नहीं करता है। यस सर्वेश, दैट्स गुड, दैट मीन्स आपका लेवल ऑफ मेडिटेशन इज गुड। सो नाइफ इन इटसेल्फ, माइंड इज लाइक अ नाइफ। Knife in itself is neither good nor bad. A knife in the hand of a surgeon can save life, and knife in the hand of a miscreant can kill. न्यूक्लियर एनर्जी अपने आप में अच्छा और बुरा नहीं होता है। अगर उससे हिरोशिमा और नागासाकी का बॉम्बिंग करते हो तो वो बुरा होता है, और अगर उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हो सो वो अच्छा होता है, राइट? बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। बंधुरात्मात्मनस्तस्य। If you make friends with your mind, you can do amazing work. You can focus, you can meditate, and you can achieve all success in life. But अगर आपका मन आपके विपरीत हो गया है दोस्तों, तो वो आपको सुसाइड तक भी करा सकता है। बोलेगा बॉस तूने जिंदगी में किया ही क्या है? ना तो तेरी गर्लफ्रेंड है, ना तो माँ बाप तेरी बात सुनते हैं, मम्मी हमेशा चिल्लाती है, टीचर भी तेरे को पसंद नहीं करते, तेरा जर्नल भी कंप्लीट नहीं होता, तेरा हेल्थ भी खराब। देख बॉस पंखा देख रहा है, हाँ रस्सी ले लटक जा, खत्म कर, जिंदगी में रखा ही क्या है? आज की दुनिया में सब फैसिलिटी है, ईयरफोन है, मसाज है, बाथ टब, स्विमिंग पूल, 5 स्टार फैसिलिटी, बट लुक एट दिस पर्सन। हमारी हालत कई बार ऐसे है कि सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। Today is a day of guided missiles in the hand of misguided men. Fast food but difficult to digest. Broad roads, narrow hearts, smiling faces, crying hearts. There is love at first sight and there is divorce at first fight. ऐसा होता है, इसीलिए हम लोग एक गजब सी दुनिया में रहते हैं। दोस्तों,
ये लाइन अगर आप लोग समझ गए तो आपका इमोशनल स्टोरी खत्म, आपका सारे जिंदगी के प्रॉब्लम खत्म। बी रेस्पॉन्सिबल टू पीपल, डोंट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर पीपल। बी रेस्पॉन्सिबल टू पीपल, डोंट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी है, यू हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू योर मदर एज अ सन। उनकी तबीयत खराब हो गई तो यू शुड गो एंड गिव मेडिसिन, यू शुड टेक केयर अबाउट हर, you should take her to the hospital. लेकिन मान लीजिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सन टुवर्ड्स द मदर, बट मान लीजिए आपकी मम्मी ने ठान लिया बेटा तू कुछ भी कर मैं दवाई नहीं खाऊंगी, तो कुछ भी कर मैं दवाई नहीं खाऊंगी, तब you should be responsible to your mother, but you cannot be responsible for your mother. ऐसे ही आप किसी दोस्त को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे हेल्प ले रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे बोलता है अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तब पूरे दुनिया का ठेका लेने के लिए आप बैठे नहीं हुए हैं। बी रेस्पॉन्सिबल टू पीपल, डोंट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर पीपल। ये इमोशनल वेलनेस का पहला लेसन है। दूसरा, एक बार एक लेडी, एक मम्मी सुबह सुबह वर्किंग लेडी थी और खाना में ब्रेकफास्ट लगा के उसके हस्बैंड आते थे और 2 बच्चे स्कूल जाने के लिए आते थे, एंड दे वुड हैव अ कंबाइंड ब्रेकफास्ट। तो माँ हर दिन बोलती थी बच्चे को बेटा अपना प्लेट उठा लिया करो, हस्बैंड को भी बोलती थी, लेकिन कोई प्लेट नहीं उठाता था खाने के बाद। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5वां दिन मम्मी ने खाना नहीं बनाया। सब आ गए खाने के लिए, घंटी बजा रहे, क्या हुआ क्या हुआ, खाना कहाँ है? आज खाना नहीं बना है। क्यों भाई? क्योंकि तुम लोग प्लेट उठाते नहीं हो। Consequences are barbs on the fences of the boundaries. हमारे घर का एक बाउंड्री होता है ना, वैसे ही हमारी जिंदगी का एक बाउंड्री होना चाहिए। अगर वो माँ हर दिन खाना बना रही है और बच्चे प्लेट नहीं उठा रहे हैं, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस दे देती है कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, या तो तू प्लेट उठाओ या खाना नहीं बनेगा। वैसे ही एक छोटा बच्चा घर पे जिद करता था, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। हमने भी जिद किया है। तो मम्मी क्या बोलती है, ठीक है बेटा, क्योंकि उसको वीडियो गेम खेलना है, वो स्कूल नहीं जाता, उसकी नीड है वीडियो गेम। तो मम्मी बोलती है बेटा कोई बात नहीं, स्कूल मत जाओ, लेकिन तुम वीडियो गेम भी नहीं खेलोगे घर पे, चुपचाप बेडरूम में बैठे रहोगे। और एक बच्चा था जो अपना रूम को इतना गंदा करके रखता था, he would keep his room so dirty and mother would clean up again and again। कपड़ा इधर फेंक दिया, मोजा इधर फेंक दिया, चिल्ला रहा है, वॉकी टॉकी में बड़ा म्यूजिक सुन रहा है, वॉकमैन लगा लिया है, ये वो, और मम्मी बोल रही है बेटा क्लीन अप क्लीन अप क्लीन अप क्लीन अप। You know what the mother did? She stopped cleaning the room. 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पे बच्चा क्या किया? 6 दिन के बाद बच्चा बोला मम्मी रूम कितना गंदा हो रहा है, सफाई करो ना। मम्मी बोली नहीं बेटा, तेरा रूम तू सफाई करेगा। Consequences are barbs on the fences of relationships, and be responsible to people, don't be responsible for people। आप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। तो stop it, stop it। Be responsible to people, don't be responsible for people, right? When your need is fulfilled, you get a happy feeling. When need is not fulfilled, you get a bad feeling। मैं सबको चार्ट्स देता हूं। Actually, I take this 7-day workshop for my national and international clients, जहां मैं ये कार्ड देता हूं फीलिंग्स एंड नीड्स। बहुत मुश्किल होता है अपने फीलिंग को आइडेंटिफाई करना, लोग बस थॉट्स बोलते हैं। जैसे एक बार एक डिवोर्स केस ने मुझे फोन अप किया रात को कि मेरी बीवी मेरे को छोड़ के भाग गई है। हाँ, अपनी BMW उठाई और बॉम्बे चली गई। तो मैं बोला क्यों भाई, क्या हो गया? नहीं, हम लोग का जोमेटो का खाना का चॉइस लेके झगड़ा हो गया। मैं बोला जोमेटो के खाना का चॉइस लेके झगड़ा हो गया, चल गई। तो हम बोले ठीक है बताइए हाउ यू आर फीलिंग। वो इडियट है, वो स्टूपिड है, वो मेरे को नहीं समझ में आ पाती है। जब से वो आई है, पहले पहले तो जब हमारा शादी हुआ कुछ दिन के लिए वो चंद्रमुखी थी, फिर सूर्यमुखी बन गई, अब ज्वालामुखी बन गई है, मैं क्या करूं? मैंने बोला सर एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट आस्किंग व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट हर, आई एम आस्किंग हाउ यू आर फीलिंग। फिर वो बोलता है वो इडियट है, वो नॉनसेंस है, वो चुड़ैल है, वो ये है। आई टोल्ड सर एक्सक्यूज मी, कैन यू ग्राउंड योरसेल्फ, आई एम जस्ट आस्किंग हाउ यू आर फीलिंग। फिर वो थॉट्स बोल रहे हैं। So when a person is not self-aware, he will always roam around in the thoughts. Chanchalam hi manah Krishna. So as a counselor, mentor and guide, you have to bring him to the feeling platform. और फीलिंग लाके उससे पूछना है कि तुम्हारी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण तुमको दुख फील हो रहा है। तब वो बोलेगा मुझे अपनापन महसूस नहीं हो रहा है, मुझे लोनली लग रहा है, क्योंकि मेरे शेयर करने वाला कोई नहीं है, राइट?
When the need is not fulfilled, you get a bad feeling. When the need is fulfilled, you. And this is the golden statement, my dear friends. Under every emotion and feeling, there is a hidden need. मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं. आप लोगों ने घर में देखा होगा, आपके पिताजी पूरा दिन काम करके लौटते हैं और मम्मी खाना बना के रखी है और पिताजी आके न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मम्मी बोलती है, अरे सुनो ना. हाँ बोलना, बोलो. न्यूज़पेपर को और ऊपर कर देता है. अरे सुनो ना. हाँ बोलो ना भाई, क्या है? घर में ना जीरा नहीं है. अरे भाई तुमको तो 200 रुपया दे के रखा है, तो जीरा क्यों नहीं लेके आती है? जीरा की कोई कमी है क्या? दुकान में चले जाओ. Now this person is not understanding that ladies are only giving hints. They don't speak, right? So she has been working whole day and she is feeling lonely. That's why she wants to share something, talk to the husband, huh? बट इसको समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज ही इज होवरिंग ऑन द थॉट प्लेटफॉर्म. उसको क्या करना है? बस पेपर को बंद करो और 2 मिनट बैठ के, ओके हाउ आर यू, हाउ वाज द डे, टॉक टू हर. आप लोग सबको समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज टाइप वाई इन द चैट बॉक्स. प्लीज टाइप वाई इन द चैट बॉक्स. वाओ, सर्वेश इज सुपर फास्ट. सत्यम, सुकृत, सुयोग. हाँ, स्पीड थोड़ा कम हो गया वाई का, हाँ, क्योंकि डीप स्टफ डिस्कस कर रहे हैं. ओके गुड. So under every feeling there is a hidden need. Karthik, thank you. जब वो बैठता है और अपनी वाइफ से बात करता है, तब she was feeling lonely, she was feeling missed out. Now the feeling is taken care of because her need for sharing is fulfilled. लेकिन अगर वो पेपर उठ के सोच रहा है जीरा प्रॉब्लम है, तो जीरा प्रॉब्लम नहीं है. इमोशन कुछ और है अंदर, और इमोशन को समझने के लिए थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत होती है. Wherever your attention goes, energy flows. अगर कोई सुबह उठ के हमेशा कंप्लेन करता है, अरे मेरे जिंदगी में रखा ही क्या है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया. And if you keep singing these type of deadly songs, you are giving so much negative input to your sukshma sharir and negative affirmations to your system that आप एकदम नेगेटिविटी के पहाड़ बन जाएंगे. But if you get up in the morning and say, I am healthy, wealthy, fit and fine. I am a spirit soul. I am not this body. I am not this mind. I am not this feeling. I am not this emotion. I am spirit soul. तब आप देखेंगे कि आपका एनर्जी बहुत अलग है. अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं 2 लाइन बोलूंगा और ध्यान से देखिएगा. पहला लाइन, I am angry. मैं गुस्सा हूं. और दूसरा लाइन, I am feeling angry. मुझे गुस्सा फील हो रहा है. क्या दोनों के एनर्जी में आपने डिफरेंस देखा? क्योंकि आई एम एंग्री. हाउ कैन यू बी एंग्री भाई? यू आर स्पिरिट सोल. हाउ कैन यू बी एंग्री? लोग बोलते हैं ना, मैं गुस्सा हूं. अरे तुम गुस्सा नहीं है, तुम आत्मा है. तुम अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर रहे हो इमोशन के साथ. आई एम एंग्री. आई एम नॉट दिस बॉडी. आई एम नॉट दिस माइंड. आई एम नॉट दिस एंगर. I am not this emotion. I am not this feeling. I am spirit soul. Mama evangsho jiva loke jiva bhuta sanatanah jivera swarupa hai Krishna nityadas. End of story. हल्कापन. सारा टेंशन, सारा क्रोध, सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, मद, मत्सर्य. मंत्र बोलने के पहले भी ये 2 मिनट का अफर्मेशन कीजिए. आई एम नॉट दिस बॉडी. आई एम नॉट दिस माइंड. आई एम नॉट दिस फीलिंग. आई एम नॉट दिस इमोशन. आई एम नथिंग. आई एम द स्पिरिट सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड. एंड instantaneously you will be connecting yourself with God. सबको समझ में आ रहा है या कुछ ज्यादा आज डॉक्टर सौरभ बक कर रहे हैं? If you're with me, type WM in the chat box. With me. If you're with me, please type WM in the chat box. Harivang, Suyog, Sukrit. Thank you so much. I am really impressed क्योंकि ये बहुत हाई लेवल चीज मैं बता रहा हूँ and you all are very fortunate to know this things quite early. कई बार लोग मुझे बोलते हैं, क्या डॉक्टर साहब आप मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते हो, आप व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं करते हो. This Diwali I got 300 messages which I could not reply. So my mentor told me, my guru told me, my guide told me, लोगों को ये बोलो. I don't say no because I am so busy. I say no because I don't want to be so busy. सबको समझ में आया?
I don't say no because I am so busy. I say no because I don't want to be so busy. मैं इसलिए ना नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं. मैं इसलिए ना बोल रहा हूं क्योंकि मैं इतना बिजी रहना नहीं चाहता हूं. Right? So then you are being true to yourself. Appreciate those who gossip about you. It's not easy for someone to leave their problems and carry yours on their head. कई बार लोग बोलते पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट में लगी है. अरे भाई, सोचो इन लोगों के पास कितना टाइम है. हाँ, खुद की चिंता नहीं करके तुम्हारी चिंता कर रहे हैं. अच्छी बात है ना. हाँ, what's there to worry? They have so much time in their life that they are thinking about you. It's good. Let them think. So my dear friends, if you want to learn about emotions, रीडिंग से 10% समझ में आएगा. ऑडियो विजुअल जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियोस को ऑन रखो दोस्तों. हाँ, when you're keeping your videos on, the energy transfer is more. Of course, I can understand net connectivity issues and data and all that, but when your video is on, the connectivity is more. And when you demonstrate a thing, 30% is learned. When you discuss a thing, जब मंथन होता है, 50% is learned. When you practice doing it, 75% is learned. And when you teach to others, 90% is done. भारत भूमि ते जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार. Right? First purify yourself. First get connected to yourself. First become conscious, and then you can think of becoming Krishna conscious. Okay? It's a very deep statement which I'm making. Be the type of energy that no matter where you go, you always add value to the spaces and lives around you. या तो हम लोग लीच की तरह होते हैं जहां बस प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं, अपना रोना धोना सुना रहे हैं, कंप्लेन, क्रिटिसिज्म. कुछ लोग आप देखते हैं नेगेटिविटी के पहाड़ होते हैं. कितने लोगों ने देखा है, एम टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, कुछ इतने नेगेटिव लोग, हॉस्टल के रूम में जाओ तो मन करता है भागो यहां से, बस बकवास कर रहे हैं. Okay, yes, Harivansh has seen. I'm liking it, right? Be the type of energy that no matter where you go, you add value to the spaces and lives around you. Bhai, this is an international personality, huh? And currently #1 counselor in the sciences of relationships. हर आदमी को लगता है, हर व्यक्ति को लगता है इस दुनिया में, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मेरा गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरी पहली वाली भी गई, दूसरी वाली भी गई, तीसरी वाली भी गई, चौथी वाली कब आएगी? हाँ, my dear friends, can you be a little sensible? It's not your job to like me, it's mine. It's not your job to like me, it's mine. My sense of self-worth doesn't come from others. My sense of self-worth comes from myself. ये जो हम लोग इतना बड़ा ड्रामा करते हैं ना, उसने मुझे वैसे बोला, कैसे देखी ना वो मेरे तरफ. पता है सर, आजकल तो स्टूडेंट्स का मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ. टुडे आई टुक 1 Zoom सेशन, आज है कल. हाँ, सबसे बड़ा लोगों को इशू है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड कंसंट्रेशन इश्यूज एंड मोबाइल एडिक्शन. हाँ, लाचार लोग, इतना दुख होता है मेरे को देख के. हाँ, वो मेरे को ना सर, पता है ना सर, ऐसे बोल के चले गए सर, सर मेरे को कितना दुख हो रहा है सर. अरे यार, वो उसका काम नहीं है तेरे को प्रेम करना. तू अपने आप को प्रेम कर. किसको लगा रखा है अपने को प्रेम करने के लिए? अपना जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरों को देके क्यों रखा है? इट्स नॉट योर जॉब टू लाइक मी, इट्स माइन. बाय बायरन केटी. लाइफ इज सिंपल. एक गोल्डन स्टेटमेंट बोलता हूं दोस्तों. हाँ, इसको ना एक कागज में लिख के अपने लैपटॉप में चिपका दीजिए, या अपने घर के आगे जहां सोते हैं ना चिपका दीजिए. Everything happens for you, not to you. Everything happens for you, not to you. लोग बोलते हैं ना, सर पता नहीं सब कुछ मेरे ही साथ क्यों होता है. मैं सोचा था आईआईटी में जाऊंगा और इस घटिया इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया. उसके बाद सर वो छोड़ के चली गई सर मेरे को, और सर मेरी दुनिया में कोई नहीं है. अरे भाई, ये क्या लगा रखा है? हाय मैं बेचारा, हाय मैं बेचारी. ये रोना धोना कब तक चलेगा? हाँ? Everything happens for you. It doesn't happen to you. जिंदगी आपके लिए हो रही है, जिंदगी आप पे नहीं हो रही है. कितने लोगों को समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अगर समझ में आ रहा है प्लीज टाइप वाई इन द चैट बॉक्स. दोस्तों, हाँ, आप लोग तो कुछ लिख ही नहीं रहे. ओके ओके. आप लोग का वाई देखने से मुझे थोड़ा एनर्जी मिलता है. थैंक यू सो मच. Everything happens at exactly the right moment, neither too soon nor too late.
You don't have to like it. It's just easier if you do. इसीलिए कृष्ण गीता में what does he say? Okay? अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्वितः। आज प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, कोई पढ़ाई नहीं करता है. That's the biggest problem. I was taking a seminar, a Zoom session just some time back. I was really stunned to hear the question. I gave a session on unleashing the power within you, and the first question which came from the student was, "Sir, tell us the success formula in which there is no effort required." What is this question, man? लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, पुरुषार्थ को खो चुके हैं, right? So that's why associate with people. दोस्तों एक golden formula बोल रहा हूं. Your life is the average of 5 people whom you associate with. आपने अपने दिल में किसको बैठा के रखा है? फेलियर को, थर्ड क्लास आदमी को, जुआरी को, दारूखोर को, लड़कीबाज को. तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? राजू, तुम्हारे दांत तो मेरे से भी ज्यादा चमक रहे हैं. क्यों ना हो मास्टर जी डाबर लाल दंत मंजन जो लगाते हो, 5 तो ऐसे दोस्त पाल के रखे. कैसे होगा भाई? दोस्तों को चेंज करो. जिनको अपने दिल में बैठा के रखे हो ना, सब आपको लूट के खा जाएंगे, काउंट ड्रैकुला की तरह खून को चूस जाएंगे. अपने लाइफ के चॉइसेस को सही करो, जिंदगी बदल जाएगा. और ये है इक्वेशन. कितने सारे इक्वेशंस हम लोगों ने किया है ना अलजेब्रा में. मेरे को तो बहुत टफ होता था, बिकॉज आई यूज्ड टू लव बायोलॉजी एंड आई यूज्ड टू नॉट बी वेरी कंफर्टेबल विद मैथमेटिक्स. a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. लेकिन मैंने तो एक ही इक्वेशन सीखा है भाई लाइफ में. एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन. अब लोग क्या क्या एक्सपेक्टेशन बना के रखते हैं. जब कोई मैट्रिमोनियल साइट देखता है तो चाहता है कि मेरी वाइफ ऐसे हो कि सबसे सुंदर भी हो, सेवा भी करे, खाना भी बनाए, काम भी करे, बच्चों का भी ध्यान दे. ऐसे कभी होता है क्या? और वाइफ बनाती है मेरा हस्बैंड ऋतिक रोशन की तरह हो, स्मार्ट भी हो, घर का काम भी करे, झाड़ू पोछा बर्तन भी करे, मेरे लिए खाना भी बनाए, मॉल से जाके सामान भी ले आए. एक्सपेक्टेशन को तो कुतुब मीनार में चढ़ा के रखे हो दोस्तों. एक्सपेक्टेशन जब रियलिटी के साथ स्ट्राइक करेगी तब फ्रिक्शन होगा और फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगा. होता है कि नहीं? कुछ गलत बोल रहा हूं तो भाई, I don't think it's all the truth. So please understand the principles of cord cutting. Very very important topic. कभी भी इमोशनली कोई डिस्टर्ब हो जाता है तो मैं बताता हूं कॉर्ड कटिंग. इमोशनल कॉर्ड्स को कट करो. बार बार अपने आप को बोलो, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस इमोशन, आई एम नॉट दिस फीलिंग, आई एम स्पिरिट सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड. और तुरंत आपके इमोशनल कॉर्ड्स कट हो जाएंगे और आप अपने आप में स्थित हो जाओगे. ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न लेना न देना मगन रहना. ऐसा स्टेट ऑफ फ्रीडम, ऐसा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. एक गोल्डन स्टेटमेंट याद रखना. माय गुरु यूज्ड टू टेल मी, टू द डिग्री यू नीड अ पर्सन यू आर कंट्रोल्ड बाय हिम. इसीलिए देयर इज अ लोकल सेइंग हियर, जिसको कछू न चाहिए वही शहंशाह. राइट? बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारी नीड्स अनगिनत है और जितना आपका नीड्स है उतना लोग आपको कंट्रोल करेंगे. आपने एक पतंग उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है जिंदगी के आसमान में. पतंग में एक डोरी नहीं है दोस्तों, 100 डोरी हैं और 100 लोग उस पतंग को उड़ा रहे हैं. आपके पतंग में कितने डोरी हैं? जितना आपके नीड्स हैं, जितने 1000 लोगों के साथ आपने बना के रखा है, इसको ये बना के रखा है, उसको वो, 1000 लोग आपका डोरी को पतंग उड़ा रहे हैं संक्रांत के सु अवसर पे. क्या बोलते हैं उसको, तिल के लड्डू खा के उड़ा रहे हैं आपको. और 100 डोरियों वाला पतंग का क्या हाल होगा दोस्तों? भाई मुझे तो ऐसा पतंग बना है कि सारे डोरियों को काट डाले, इस सांसारिक डोरियों को काट डाले और उड़े इस पतंग, खुले आसमान में उड़े. न लेना न देना मगन रहना, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. इतना दुख खाया है, कितने रिलेशनशिप्स बनाए हैं, अलग अलग रस्सियों से अपने आप को कंट्रोल देके रखा है लोगों को. क्या मिला दोस्तों? अपने आप से पूछो, मुझे मत पूछो, क्योंकि गीता की वाणी तो कभी गलत नहीं हो सकती. राइट? So principle of cord cutting is very important, and it is very important to ground oneself. एक इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में भी एक तार होता है जिससे ग्राउंडिंग होता है, जो धरती के नीचे चला जाता है ताकि ओवरचार्ज नहीं हो. हम क्या अपने आप को ग्राउंडिंग करके रखें? तो ये गोल्डन वाला स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेके रखिए.
हाउ टू टैकल माइंड डिस्टर्बेंस। अरे भाई आजकल हर बच्चे का तकलीफ, सर ना मेरा ना माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे भाई कैसे कंट्रोल होगा? सुबह उठ के व्हाट्सएप देख रहे हो, बाद में न्यूज़पेपर देख रहे हो, फिर यूट्यूब में उल्टा पुल्टा देख रहे हो, फिर छिप छिप के लैपटॉप में पता नहीं क्या देख रहे हो। हाँ आजकल तो घर घर पहुंच गया है ये सब चीजें, तो कैसे नहीं होगा माइंड डिस्टर्ब? फर्स्ट रिलीज द ब्लेम, टेक्स टाइम, एक्नॉलेज द इमोशंस, कनेक्ट एंड रिकनेक्ट टू योर नीड्स। शांति से एक अलग जगह आ जाइए, ठंडे पानी से नहाइए, एक गहरी सांस लीजिए। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र फ्रॉम ध्यान योगा। कभी भी गुस्सा है ना तो मेरा ये लाइन याद रखिए, कभी भी लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी और इल्यूजन आए ना तो ये याद रखिए, गौतम बुद्ध को किसी ने पूछा while he was about to leave for the spiritual realm कि tell me in one line how can I achieve nirvana, and Gautam Buddha said अपनी चेतना को अपने सांसों में ले जाइए। He gave him a principle of ध्यान योग, and I'll just share, this is not the ultimate thing but this is a material thing which may help you। कभी भी गुस्सा है ना, कहीं भी आप हैं, अपनी चेतना को अपने सांसों में ले जाएं। 2 मिनट में ही आपको करके दिखाता हूं, राइट? अपनी चेतना को अपनी सांसों में ले जाएं और अपने सांसों के आवागमन को ध्यान से देखें। ये सांसों का आना, ठहरना, छाती का फूलना और स्वयं सांस का निकल जाना। जैसे ही हमारा जन्म होता है प्राणवायु दौड़ने लगती है अपने आप, और जैसी मृत्यु आत्मा शरीर से निकलती है प्राणवायु स्टॉप होता है। कौन से नासिका से कितना सांस अंदर और बाहर जा रहा है, ये सांसों का आना और जाना बहुत सूक्ष्म अगर आप होंगे, अगर आपका सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाई होगा तो आप देख पाएंगे कि फ्रॉम वन नोस्ट्रिल देयर इज 60% इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, एंड फ्रॉम द अदर नोस्ट्रिल इट्स 40%, एंड इट ऑसिलेट्स, कभी राइट कभी लेफ्ट। और एक नाक से टेम्परेचर सांस का ज्यादा होगा और दूसरा कम। So when you focus on your breath, you release your blame, you control your emotions, and you are in touch with yourself. And then you can practice Bhakti Yoga very nicely and connect yourself to Paramatma. Connect and reconnect to your needs. Find out the strategies to fulfill your needs. पहले ब्लेम को रिलीज करो। जब तक ब्लेम रिलीज नहीं होगा अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाओगे तो फीलिंग को समझ नहीं पाओगे। फीलिंग को समझ नहीं पाओगे तो नीड्स को पकड़ नहीं पाओगे। नीड्स को पकड़ नहीं पाओगे तो आत्मा को शांति मिलेगी नहीं और घूमते रहोगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहा संसारे बहु दुष्टारे कृपा करी पही मुरारी। How can you remember God if your mind is disturbed? How can you practice Bhakti Yoga if your mind is disturbed? So ये golden slide मैंने बहुत समुद्र मंथन नहीं मन का मंथन करके निकाला है। When can I get peace and comfort? इस कलयुग में कली दोष निधि राजन अस्ति एकत महत गुना, कैसे मुझे मिलेगा peace and comfort? Only and only when I am connected to my needs. पीस का मतलब शांति, कंफर्ट का मतलब आराम, हैप्पीनेस का मतलब सुख। और दोस्तों विदाउट शांति सुख बिकम्स लोभ एंड भोग। एक्सेप्टेंस गिव्स सेटिस्फैक्शन, सेवा गिव्स हैप्पीनेस। यह बहुत डीप स्टेटमेंट है, आप लोग अभी बस सुन लीजिए और कंटेम्पलेशन कीजिएगा एंड कनेक्ट टू योर मेंटर्स हु आर द CQ क्लब मेंबर्स हु कैन एक्सप्लेन दिस यू इन ग्रेट डिटेल्स। You cannot say no outside until you have a big yes inside. बहुत लोग बोलते हैं कि हम ना नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर हाँ नहीं है। So in x-axis there is peace and comfort, and in y there is unlimited. हमारी जिंदगी की बैंड बजी हुई है सबकी, मेरी भी बजी थी, लेकिन इस मेस से मैंने एक मैसेज निकाला और आप लोग सबके साथ शेयर कर रहा हूं। And that's why in this training industry the 3 things which come, जब आप दूसरों को ये ज्ञान देते हैं, first is income, second is impact, and third is independence, where you can live a life of success
And success means to know how much to do, for whom to do, till when to do, and why to do. And in the next 5 minutes I'll wrap up the seminar. Sorry I delayed it a bit, but चूंकि आप लोग इतना इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, मैं थोड़ा सा एडवांटेज ले रहा हूं, अनड्यू एडवांटेज. सो व्हाट इज लव? ये लव ने बड़े बड़े पोएट्स को घायल करके रखा है. बड़ी बड़ी कहानियां लिखी है लव के बारे में. फॉर मी इट्स वेरी सिंपल. लव इज अ नीड which can be fulfilled by various ways and methods. Love means service. It is a verb. It's not a noun. When you feel positive feeling, you are happy. When you feel negative feeling, you are unhappy. Of course, ये सब material realm की बातें हैं. चैतन्य महाप्रभु तो बोलते हैं, आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम. हम लोग जब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उसको बोलते हैं काम और लस्ट. जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम. कब आएगा वो समय जब हम अपने ही इस गुट्टल से निकल के दूसरों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के लिए कुछ काम करेंगे. जब मैं छोटा था, मेरे पापा पेशेंट देखते थे. छोटा सा हमारा घर था और मैं स्कूल से आता था, वहां पे एक बोर्ड लगा रहता था, उसमें लिखा रहता था, एवरी टाइम दिस सबकॉन्शियस इनपुट वुड गो इनटू माय माइंड, व्हाट यू आर इज गॉड्स गिफ्ट टू यू, व्हाट यू डू एंड बिकम इज योर गिफ्ट टू गॉड. क्यों रोते हैं लोग इतना? भगवान ने आपको आंख दिया, आंख से आप देख पा रहे हैं, कान से आप सुन पा रहे हैं, आपको ह्यूमन फॉर्म मिला है, रात का खाना मिला ना, सॉरी दोपहर का खाना मिला ना, रात का मिलेगा ना, सोने को मिलेगा ना, रजाई मिलेगा ना, ठंड तो नहीं लगेगी, बाहर किसी को सोना तो नहीं पड़ रहा है, आप लोग का एजुकेशन हो रहा है, पढ़ाई के लिए है, मम्मी पापा पैसा भेज रहे हैं, फिर क्यों रोते हो यार? क्यों रोते हो इतना? Wherever your attention goes, energy flows. एक बार थैंक्स देखो तो देखो भगवान को. सुबह उठो और ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो. Write 5 points that you can be happy about in life. You can thank God. You can thank your parents. You can thank your teachers. You can thank the members of the CQ club जो आपके पीछे पड़ के आपको प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं. क्या मिल रहा है यार उन लोग को? कोई पेमेंट तो मिल नहीं रहा है ना? जो यहाँ बैठ के इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, he's doing it because he's getting some happy feeling जो कोई भी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है. It's the happiness fulfilled by the need for contribution. और दोस्तों, इस दुनिया में बस 5 टाइप का एनर्जी एक्सचेंज होता है, सिर्फ 5. जितना भी एनर्जी can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. And I'm amazed that 26 participants are still sticking on. And I always give a gift. How many of you want a gift from me? Please type G in the chat box. Gift from me. Wow, people want gifts. तो यहाँ Zoom में बैठे बैठे मैं क्या gift दूंगा? I will give you verbal gifts. I will give you lines which will change your life, right? And I will do it at the end of today's seminar. जो लोग लास्ट तक है, 5 टाइप के दान होते हैं. सबसे परम दान होता है ज्ञान का दान, और ज्ञान के साथ और दान होते हैं अन्न का दान, समय का दान, श्रम का दान और धन का दान. Give back a little more than what you have received and give it in the other person's terms, not in your terms, and your life will be amazing. So 4 steps होता है learning का and understanding the emotions. पहला है listening and understanding. श्रवणम. बार बार मैं बोलता हूं, लोग बोलते हैं ना, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है, देखते रहो. लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया. मेरे लाइफ में ऐसा नहीं हुआ. बार बार सुनो, 1000 बार सुनो, जो सुनने की चीज है वो सुनते रहो. Hearing is very important. Every day I read the books, I hear from the proper bona fide sources, and that is how I am what I am. श्रवणम, listening and understanding. जो भी मैंने बोला, अभी Zoom सेमिनार के बाद नोट्स बना के सोचिएगा. इंट्रोस्पेक्शन, और उसके बाद है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यासम. और जब अभ्यास करके आप उसमें थोड़ा रियलाइजेशन हो जाएगा, तब आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए. ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, अपनी मंजिल अपनी दौड़, न लेना न देना, मगन रहना. रिलेशनशिप्स में कभी कभी सॉर्टिंग आउट करना पड़ता है, कभी कभी डीलिंग करता है. सॉर्टिंग आउट मींस कीपिंग द पर्सन आउट ऑफ योर ऑरा. कुछ लोग बहुत इरिटेटिंग होते हैं, उनके साथ डील करके साइड में कर दो.
And dealing means working on the emotional bank account. There are 3 cancers which spoil the emotions: cribbing, complaining and criticizing. और दोस्तों ये लास्ट के 4 स्लाइड आपकी जिंदगी को बदल देगी। हम लोग जो भी हैं, हर व्यक्ति में अनसर्टेनिटी है। कल क्या होगा किसको क्या पता? अरे कल की छोड़ो, अभी से 1 घंटे बाद क्या होगा क्या किसको पता? चाइना अटैक कर देगा या आपको कोरोना हो जाएगा। घबराइए मत। अनसर्टेनिटी को जब आप एक्सेप्ट करते हैं वो एडवेंचर हो जाता है, लेकिन जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो डर बन जाता है। जब दूसरों के सक्सेस को देख के आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको इंस्पिरेशन मिलता है, लेकिन जब आप दूसरों के सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो आपकी जलन होती है और उससे आपके कान और नाक से धुआं निकलता है, राइट? जब किसी दूसरे के इमोशन को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका टॉलरेंस बढ़ता है। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमाननीय मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं दोस्तों, आप कुछ नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस इज अ बिग वर्च्यू। जब आप दूसरे के इमोशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तब गुस्सा आता है। जब अनसर्टेनिटी को आप एक्सेप्ट करते हैं वो टॉलरेंस होता है, और डोंट एक्सेप्ट करते हैं तो एंगर बन जाता है। तो यही पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन का कारण है। तो दोस्तों मैं हमेशा बचपन से बहुत पोएम सुने मैंने। रामधारी सिंह का एक पोएम इज ऑलवेज अ इंस्पिरेशन फॉर मी। कृष्ण की चेतावनी। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन मार मुझे, विकराल काल जब छाता है, पहले विवेक भ्रष्ट हो जाता है, जंजीर बढ़ा और साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। राइट नाउ द पोएम ऑफ लाइफ, दिस इज अ वेरी डीप पोएम रिटन बाय अ वेरी सीनियर वैष्णव सेंट, और मैं आप लोग को बता रहा हूं ये पोएम। जब बादल टूटते हैं तो बारिश आती है, जब फूलों को पीसा जाता है तब खुशबू आता है, जब धरती टूटती है तब अंदर से अनाज निकलता है, जब अनाज टूटता है तो उससे आटा बनता है, जब आटा अंदर में टूटता है तब उससे जठर अग्नि से खाना डाइजेस्ट होता है। और दोस्तों ये रोना धोना बंद करो कि मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है, मेरा दिल को किसी ने तोड़ दिया है, क्योंकि जब दिल टूटता है ना उसके बाद ही स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस करने का प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी दैट आई extended myself. Can I request my digital team to put the YouTube link? लोगों को मैं बोलता हूं सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट डेली वीडियोस को सुने। स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इन लोगों से आप जब सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आप आत्मा को मानने से, जानने से, समझने से लेके धीरे धीरे महसूस कर पाएंगे और अपने लाइफ में इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।